अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाजरीन, चलते हैं गांव की पंचायत में और देखते हैं कि आज वहाँ क्या हो रहा है। नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी जरा मुख नू इधर मोड़, नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे हो। छोटी साहब इधर मैनू फड़ाओ की काम जनाब। यार शहजादू बस बच्चे आ थां थां चीज रख दिंदे आ फिर लभदी नहीं। ओहो ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਲਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣੇ ਸਨ। ਸਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਪੈਰ ਧੋ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਡਾਂਸ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਟਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਲਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਕਣ ਡੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਮੇਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਏ, ਉੱਥੇ ਗੋਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਰੇ ਰਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਐ। ਚੁਦਰਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਓਏ ਅੱਬਾ ਏਡੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾ ਕਰ ਕਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆਇਆ? ਓਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਭਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨਾ ਚੋਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਯਾਗ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਚੌਧਰੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਤਰੇ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿਦਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਾਹ ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ, ਉੱਠ ਤੇ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਪੀਸਣੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਚੌੜੇ ਹੋਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਜਦ ਪਿੰਡਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੌੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੌੜੇ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਏ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਏ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਤਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਤੀ ਏ ਚੌਧਰੀ ਦੀ? ਓਏ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਆ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਨ ਡੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਈਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ। ਭਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਜਰਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਮਾ ਹਾ ਹਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡੇ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੋਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਬਿੱਲੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਓਏ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਰੇੜਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਰੇੜਵਾ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲਣ ਕੀ ਡੇ ਹੈ। ਅਗਲਿਆਂ ਉੱਥੇ ਸਫੈਦ ਗਰਦਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਬ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਪਰਿੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਰ, ਤੇ ਉਸੇ ਕੌਮੀ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੀਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਧਰੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਚੁੰਝ ਨਾ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੋ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਅਕਲਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਚਾ? ਆ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਤੇ ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਆ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਸਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ। ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰਹੇ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾ। ਓਏ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਭਲ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤਬਾਦਲ ਰਾਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਆਗੇ ਰਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਲਾਮਾ? ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਕਰ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਕਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਲੱਥ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣੇ ਨੇ ਬਦਲੇ। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਭਈਆ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ। ਦੱਸ ਦੇ ਤਾਇਆ, ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਬੋਲਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਇਆ? ਦੱਸ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੂ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਲੜ ਚਾਚਾ। ਨਾ ਲੜ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸਹੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਾਦਾ? ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਾਹਦਾ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇਰਾ? ਛੋਟਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਗਰਮ ਖੂਨ ਆ। ਤੇ ਗਰਮ ਖੂਨ ਆ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਮ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਬਹਿਨੇ ਆਏ, ਗਰਮ ਖੂਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਵਾਲ ਦੀ ਰਿਓੜੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਡੱਕਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਏਡਾ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਹੋ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲਈਦੀ। ਮੈਂ ਡੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰਾ ਰਾਣਾ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਨੀਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਧੁੱਪ ਛਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਟ ਜੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਰਾਣਾ ਸਿਰਫ ਧੁੰਦ 'ਚ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਭਈਆ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਲੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਖੋਤਾ ਦਲੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬੱਟ ਮਾਰੇਗਾ? ਦਲੱਤੀ ਮਾਰਦਾ ਖੋਤਾ ਕਿਉਂ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੂ ਤਾਂ ਦਲੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਦਲੱਤੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਖੋਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੋਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਉਸ ਖੋਤੇ ਨੇ ਦਲੱਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਖੋਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਯਾਰ ਰਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਬਦਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਸਾ ਦੋ ਜੋਰੋ ਜੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਬਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਚਾਚਾ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਚੱਲੇ ਓ ਚੌਧਰੀ ਚਾਂਪ ਚੜਕ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਚੱਲ ਦਫਾ ਕਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਚਾਂਪ ਚੜਕ। ਹਾਲੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਦਫਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਡੰਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਪੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲੀ ਏ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਆ ਝੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਮਰਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਰਾ ਕੋ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ। ਤੇ ਝੂਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਏ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਝੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ। ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਡੰਗਰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਐਡਾ ਕਾਹਦਾ ਕੋ ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਕੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਲਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰੇ? ਉਹ ਝੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਡੰਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੂੜੀ ਵੀ ਸਟਾ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੂੜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਹੀ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਮਿੰਟੀ ਭਜਾਦਾ ਝੂਰੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ।
ਕੁੱਟਦੀ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਚਾਚਾ। ਅਵੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਖੀ ਰੋਦਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਟ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਰੀ ਪਾੜ ਛੱਡਦਾ। ਚਾਚਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਕਰਦਾ ਸੂਟ ਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਪੀਪਾ ਵੀ ਤੇ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਓਏ ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ खादी है। वैसे चौधरी साहब, ये एक इंतहाई संगीन मसला है और ये सिर्फ आपके गांव का नहीं बल्कि अक्सर गांव देहातों का यही इशू है। बिल्कुल। हुकूमत अगर डिस्पेंसरी की सहूलत देती है, अस्पताल खुलता है या स्कूल बनता है तो मकामी बाअसर अफराद इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं और इसको अपने जाती इस्तेमाल में लेकर आ जाते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। बिल्कुल सही। अगर आपके गांव में खुशकिस्मती से जानवरों के इलाज के लिए डिस्पेंसरी खुली गई है तो उसमें इलाज भी जानवरों का ही होना चाहिए, सही। ना कि किसी के जानवर बांधने या किसी के जाती इस्तेमाल के लिए। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਜੇ ਝੂਰੀ ਨੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨ ਹੀ ਲਏ ਆ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਬਣਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੋਏ। ਆ ਚੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲੀਆਂ, ਰਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅਚਾਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖਸ਼ਾਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏੜੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣੇ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਝੂਰੀ ਰਲੇ ਹੋ ਨਾਲ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਉਹਦੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦਰਖਤ ਵੱਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕੌਣ ਲੱਦਣ ਡੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਡਏ ਹੋ ਸਿੱਧਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਝੂਰੀ ਝੂਰੀ ਝੂਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਦੇ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਚਾਚਾ ਦੇਵੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਰੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਦਵਾਉਣ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਚੁੱਕ ਝੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਚੋਰੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਦੇਵੇ ਚੌਲ ਭਾਵੇਂ ਲੂਣੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਿੱਠੇ ਲੂਣੇ ਹੋਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਇਆ, ਵੰਡ ਖਾਓ ਤੇ ਖੰਡ ਖਾਓ। शहजाद साहब, अब्बा जी जी पुत्र, बकरी बहुत ही बीमार हो गई जी, तो बिल्कुल ही जा पई है। ਉਹ ਚਲਤੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆ ਸਹੁਰਾ ਤੇਰਾ ਬੱਕਰੀ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ। चौधरी साहब किहो जिहियां गल्लां कर रहे हो, मैं वो बकरी नूं अपने बच्चे हार पालिया है। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਜਵਾਇਣ ਗੁੜ ਤੇ ਸੌਂਫ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। नहीं जी, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਗਈ ਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਇਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਚਲਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਚਲੋ। ਉਹ ਜੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੋਗੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦ ਆਉਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਨਿਹਮਤੁੱਲਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਝੂਰੀ ਨੇ ਤੂੜੀ ਸੁਟਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜਕ ਵਾਲੀ ਕੁਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਤੇ ਜਾ ਪਵੇ। ਅੰਦਰ ਮੱਝਾਂ ਹਾਂ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम, आओ जी आओ, डॉक्टर जी बैठो। ਅਬੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਕੁਲਫੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੂੜੀ ਸਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
मैं किथे बावां ते डंगरां ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੂੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਤੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੂੜੀ ਸਟਾਈ ਹੈ ਮਜਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੌਣ? ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्ला ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜੂਰੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। चौधरी साहब इस पर तो आपको जरूर एक्शन लेना चाहिए। बल्कि डॉक्टर साहब मैं तो कहता हूं कि अगर चौधरी साहब इस पर एक्शन नहीं लेते तो आपको फौरन जाकर हुक्काम बाला को बताना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, बल्कि ये तो एक कब्जा माफिया है जिसने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के अंदर कब्जा किया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल सर। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ। ओह ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਪਾਲ ਲਾਂ। अच्छा ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ, ਭਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂ? हाय ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਲੇ ਆਣਾ। नाज़रीन यहां पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सारा टाइम मेरा फोन तुम्हारे सामने होता है, लेकिन तुम शक करने से बाज नहीं आती। एक्सक्यूज मी, अगर आपकी बीवी आप पे शक करती तो आप गुस्सा क्यों करते हैं? मेरी बीवी मुझ पे शक करती है तो मैं तो खुश होता हूँ। अच्छा मैं तो फौरन दिमाग में फिल्म का वो सीन ले आता हूँ हाँ। जिसमें हीरोइन हीरो से चिढ़ के एक लड़की को बहुत मारती है। नाजरीन हमारे स्टूडियोज में आज ऐसे मियाँ बीवी मौजूद हैं जिनके दरमियान अजीब व गरीब लड़ाई झगड़ा चल रहा है। वैसे तो हर दूसरे घर में ये झगड़ा पाया जाता है, मगर हम पहली बार अपने स्टूडियोज में ये दिखा रहे हैं। आप भी जरा देखिए, बड़ी मजेदार लड़ाई है इनके दरमियान। आए हाय सुबह शाम एक ही बात, आखिर आपको होता क्या जा रहा है? मुझे अपना आप इग्नोर होता हुआ फील होता है। मेरा मुकाबला एक ऐसे जानवर के साथ किया जाता है जिसका नाम गाली के तौर पे इस्तेमाल होता है। पता नहीं आपको मेरे पप्पी के साथ क्या मसला है, आप खुद बताएं। उसके साथ आपका मुकाबला बनता है? लो मुकाबला तो तुम्हारा भी फोन के साथ नहीं बनता, लेकिन मैं जब भी फोन हाथ में थामता हूं तुम फौरन लड़ना शुरू हो जाती हो कि इसको दरमियान से हटाओ। भाई फोन तुम्हें क्या तंग करता है? फोन की बात और है, फोन आपके हाथ में हो ना तो आपकी तवज्जो कहीं और ही चली जाती है। हाय सारा टाइम मेरा फोन तुम्हारे सामने होता है, लेकिन तुम शक करने से बाज नहीं आती। एक्सक्यूज मी, अगर आपकी बीवी आप पे शक करती तो आप गुस्सा क्यों करते हैं? मेरी बीवी मुझ पे शक करती है तो मैं तो खुश होता हूँ। अच्छा मैं तो फौरन दिमाग में फिल्म का वो सीन ले आता हूँ हाँ। जिसमें हीरोइन हीरो से चिढ़ के एक लड़की को बहुत मारती है। ओ भाई कोई मसला हो तो बीवी शक करे ना, फजूल शक करे तो बंदे को गुस्सा चढ़ता है। यही तो मर्दात की चालाकी है, बजाहत यूं शो करवाएंगे जैसे कोई मसला ही नहीं है। हाँ। लेकिन हम भोली औरतों को पता ही नहीं चलता कहाँ मर्दात अपनी औकात दिखा दे। हाय बीबी आप तमाम मर्दों को ना रगे दो, बीच में मेरे जैसे इनोसेंट भी हैं। वो इनोसेंट, वो दरबारी सेंट। तुम मर्दों की बात में क्यों बोलते हो गोगे? तुम तो मर्दों के जुमरे में आते ही नहीं। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, मौजू को मत बदलो। बात मैं इस वक्त करने आया हूं तुम्हारे कुत्ते की, जो बहुत ही कुत्ता है, बल्कि कुत्ता नहीं कुत्ता कमीना है। तौबा तौबा, कितनी लूज लैंग्वेज यूज करते हैं आप। कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? पढ़े लिखे लोग इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। हाय जब पढ़े लिखे के कमरे से वाव 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 ऐसी आवाजें आएंगी, उसकी जर्सी पे कुत्ते के बाल चिपके हुए मिलेंगे, हाय तो बंदे के मुंह से ऐसी मुगल्लजात निकलेंगे। मैं माफी चाहता हूं, आप इन सारी बातों को छोड़ें, आप जरा वो वाली आइटम दोबारा करें। वाव वाव वाव। अच्छा, ये वो कुत्ते के बाल आपकी जर्सी पे चिपके हुए होते हैं? जी सर, वो पप्पी को ठंड लग रही थी तो मैंने इनकी जर्सी उसको पहना दी। आपको पता है मैंने उसकी पिक भी बनाई है जर्सी के साथ
इतना क्यूट लग रहा था पपी, इतनी प्यारी उसको जर्सी लग रही थी, इतनी प्यारी तो इनको भी नहीं लगी वो जर्सी। बस फिर भैन जी इन्हां दा 2 पीस पपी ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਆਏਗਾ। सुन रही हो? अभी तुम कह रही कि तुम्हारा और पप्पी का क्या मुकाबला? अभी मेरा और पप्पी का मुकाबला नहीं है, तो ये हाल है। ओए यार, आप क्यों एक कुत्ते से जेलस हो रहे हैं? जी अभी आपने सुना नहीं है कि मेरी जर्सी भी पप्पी को पहनाई गई है, नाश्ता भी उसको मुझसे पहले मिलता है, डिनर उसको मुझसे पहले मिलता है, अच्छा, लंच हमारे साथ वो बैठ के करता है। आए तौबा तौबा, उसके बर्तन अलहदा हैं। बर्तन भी हमारे इकट्ठे कर दो। तो यार भाई तुम कुत्ते से इतना तंग हो तो बीवी से लड़ने के बजाय कुत्ता किसी को दे दो। बड़ा चालाक कुत्ता है जी, 2 दफा मैं उसको किसी के घर छोड़ के आया हूँ, शाम को वापस आ जाता है। लो जी, इनके कुत्ते के पास मोबाइल फोन है, वो लोकेशन लगा के वापस आ जाता है। एक दफा तो मैंने उसके मुंह पे एल्फी लगाने की कोशिश की, वो ऐसा भौंका कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। अब मुझे समझ आई कि वो बेचारा आपको देख के सहम क्यों जाता है। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਛਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। हाय हाय, मैं मर गई। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। और ठहर जाओ भाई, आगे कुत्ते की वजह से घर में शामत आई हुई है, आप लोग जलती पे तेल छिड़क रहे हो। फरीद साहब, हीटर का रुख मेरे बजाय पप्पी की तरफ किया होता है। आपने तो 3-3 स्वेटर पहने होते हैं, उस बेचारे ने कौन सी जैकेट चढ़ाई होती है। भाईजान एक कोई नुस्खा है, वो क्या भाई? साफ इलाने जंग कर दें कि या इस घर में कुत्ता रहेगा या फिर कुत्ता रहेगा। तो भाई जी रहना ही कुत्ते ने है, मैं किस लिए मैं तोप के मुंह के आ गया हूं। या फिर यूं कह दे कि या इस घर में कुत्ता रहेगा या मैं चला जाऊंगा। परसों मैंने ये भी कहा था भाई, अबसुर्दा समूह बना के कहती है, अब रात के अंधेरे में कहां जाएंगे आप? हाँ ठीक है ना, आपको तो घर का रास्ता आता है, उस बेचारे को कोई ले गया तो। वैसे माफ कीजिएगा बीबी, हमें इस कुत्तखाने में बोलना तो नहीं चाहिए, मगर आपकी गुफ्तगू से ये फील हो रहा है कि आप अपने पप्पी से तो प्यार करती ही हैं, मगर आप अपने हबी की टगे की इज्जत नहीं करती। और क्या, ये पिछले दिनों हमारे घर में मेहमान आए हैं, वो आके घर में बैठे हैं तो उन्होंने कहा कि घर की रौनक नजर नहीं आ रही, तो कमरे में गई हैं तो अपना कुत्ता उठा के ले आई हैं। उन्होंने कहा कि हम तो भाई साहब की बात कर रहे हैं, आगे से कहती हैं अभी तो आप घर की रौनक की बात कर रहे थे। यानी आपके घर की रौनक भी वो कुत्ता है, उनको घर च सर्कस लाई है कुत्ते ने। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁੰਬ ਹਲਾਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਭਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੁੰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ऐसे मैं आप लोगों को ये बताऊं, ये कुछ सिर्फ इनके घर का मसला नहीं है, जहां जहां भी घर में पेट मौजूद है ना जी, वहां 80% लोगों में ये इख्तलाफ पाया जाता है। और ये सिर्फ कुत्ते का ही नहीं है, बिल्ली के ऊपर भी घर में लड़ाइयाँ होती हैं। बिल्ली के भी बाल जो है ना जी वो उड़ते हैं, बाल झाड़ती है या उसके झड़ते हैं बाल, अगर लंबे बालों वाली हो तो उससे मर्द हजरात बहुत सख्त चालू हो रहे होते हैं। वो जिसने अगर खातूने खाना ने रखी हुई है तो वो कहती है कि नो प्रॉब्लम, मैं साफ कर लेती हूँ। कुत्ते की वजह से भी यही लड़ाई होती है। अगर मर्द हजरात कुत्ता पालते हैं तो वो बड़ा तगड़ा ले आते हैं जिससे औरतें डरती हैं, फिर लड़ाई। जी। अगर खवातीन को कुत्ता पसंद हो तो उनको छोटा सा कुत्ता अच्छा लगता है, वो घर में ले आए तो उसके बालों का उड़ना, उसके और मसाइल होते हैं, उसमें मर्दों ने गुस्सा करना होता है। बहरहाल आई एम सॉरी, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही आपके घर से ये कुत्तखाना खत्म हो सकता है। बिल्कुल यार अजीजी, तोते की वजह से भी झगड़ा शुरू हो जाता है। मैंने तोता रखा था, अच्छा, वो मेरे साथ बातें करना शुरू हो गया और मेरी बेगम जेलस हो गई। मैं एक दिन बाहर गया हूँ शेव कराने के लिए, उन्हें तोता आलूआ छुपा लिया। वाह 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 वाह, उसने उड़ा दिया। नहीं आलूआ ही छुपा लिया हो रहा है, ये नहीं हो सकता। नहीं तो भरजाई ने आलूआ छुपा के ते अगे रखिया, उन्हें कहा लो जी आलू बटेरे पकाए। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤੋਤੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦ ਤੋਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਗਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।
अबे वो जाहिल, तोते का टुका हुआ अमरूद मीठा होता है। लो क्या आप लोग तो मजाक कर रहे हो ना? ये इंडिया में ये केस हुआ है कि मियाँ ने घर में बिल्ली रखी हुई थी, तो बीवी उसकी अदालत पहुंच गई। उसने कहा ये मेरा मियाँ जो है ये मुझसे ज्यादा बिल्ली को टाइम देता है। बल्कि उसने कहा कि बिल्ली इसे पंजाबी मार दे तो ये कुछ नहीं कहता, मैं जरा सी बात करती हूँ तो मेरे साथ लड़ पड़ता है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਤੋਤੇ ਦਾ ਟੁੱਕਿਆ ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਗੋਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੀ ਵਾਈਟ ਕੋਰਮੇ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं ना कि मियाँ ने या बीवी ने, किसी एक फर्द ने अगर कोई पेट पाला हुआ है और दूसरे को पसंद नहीं है तो झगड़ा शुरू हो जाए। हाँ जी सर। हाँ, कई घरों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मियाँ बीवी को पेट लेके आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और वो दोनों उसको एंजॉय करते हैं। ये मैं एक खबर पढ़ रहा था पिछले दिनों, जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका में मियाँ बीवी ने मिलकर चीता पाला हुआ है। हाँ, उसकी वीडियो भी है। अच्छा। वो मियाँ भी और बीवी भी दोनों चीते के साथ खेल रहे होते हैं। और चीता उनके घर में बिल्ली की तरह फिर रहा होता है। वाह जी वाह। ਹੁਣ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਚੀਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੀਤਾ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। सर जी मैंने तो इससे रिक्वेस्ट की है, अगर तुम्हें पेट रखने का शौक है तो कोई तोता रख लो, साइड में पिंजरे में पड़ा रहेगा। मछलियों वाला एक्वेरियम ला देता हूँ, वो भी साइड में पड़ा रहेगा। कहती नहीं मैंने तो पप्पी रखना है, पप्पी। पप्पी पूरे घर में दंदनाता फिर रहा है, उसी को रखना है। दंदनाता क्या मतलब? पप्पी ने पिस्तौल रखा हुआ है। आप भी छोटी सी बात को बहुत फैला के डरावना बना के पेश कर रहे हैं। हाँ जी। थोड़ा सा साथ दें, चलो उनको शौक है अगर पप्पी रखने का, तो आप भी पप्पी के साथ दोस्ती कर ले। हाय। नहीं, ये तो दोस्ती करना चाहते हैं कुत्ते के साथ, वो कुत्ते को पता चल गया कि ये बंदा ठीक नहीं है। वैसे यार मैं माफी चाहता हूं, आप दोनों मुझे शक्ल से भी और हुलिये से भी पढ़े लिखे लोग लगते हैं। पढ़े लिखे लोग तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ घर के मामलात चलाते हैं, और खास तौर पे उन मामलात में कि शौक जो है वो तो एक एक्स्ट्रा चीज है। हाँ जी बिल्कुल। अगर कोई दूसरा भी इस शौक को डाइजेस्ट करता है तो ठीक है, जबरदस्ती अपना शौक जिंदा रखना और दूसरे को वो पसंद ना होना, ये तो सीधी सीधी लड़ाई है। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहां पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ऐसे तो 3 घंटे का पेपर भी होता है, मगर उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और आपका अपना इम्तिहानी मरकज के सुप्रिटेंडेंट जैसा मुंह है। और सुप्रिटेंडेंट भी वो जो अक्सर नकल कराते हुए गिरफ्तार हो जाता है। नाजरीन, पाकिस्तान के बड़े शहरों में बिलखुसूस आवाम की एक बड़ी तादाद किराए के घरों में रह रही है। आए रोज किराएदार और मालिक मकान के दरमियान नित नए तनाज़ात पैदा होते रहते हैं। आइए ऐसे ही एक तनाज़े का हाल देखते हैं। ओ भाई, 3 घंटे का तुम्हें नोटिस दे रहा हूँ, मेरा मकान खाली कर दो, अगर नहीं किया तो मैं खुद तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। तुम मेरा सामान बाहर फेंक के तो देखो, इसके बाद पूरा 1 माह आपके रिश्तेदार आपको अस्पताल देखने के लिए आएंगे। बस बेटे, 3 घंटे का वक्त शुरू हो चुका है, अब देखना तुम्हारे साथ होता क्या है। यार, इस मसले का बेहतरीन हल मेरे पास है। 3 घंटे का नोटिस शुरू हो गया ना उसका, तुम अपनी घड़ी से सेल निकाल दो। ओ भाई, 3 घंटे की तो फिल्म होती है, नोटिस मैंने पहली दफा ही सुना है। वैसे तो 3 घंटे का पेपर भी होता है, मगर उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और आपका अपना इम्तिहानी मरकज के सुप्रिटेंडेंट जैसा मुंह है। और सुप्रिटेंडेंट भी वो जो अक्सर नकल कराते हुए गिरफ्तार हो जाता है। अजीजी साहब, मेरी जगह आप होते तो 3 मिनट भी इसको बर्दाश्त ना करते। बिला वजह तुम मेरे सर पे चढ़ रहे हो। चलो, तेरे सर पे चढ़ के तिलकना मैं। ये तिलकने वाली बात तुमने ठीक की, सारिस का ऐसे ही है जैसे देग मुद्दी मारी होती है। वो ठीक है भाईजान, 1 मिनट ठहरे, किराया आपको वक्त से पहले मिल जाता है, और आपको क्या चाहिए? मुझे तुम जैसा किराएदार नहीं चाहिए। पहले तो कहते थे तुम्हारे जैसा किराएदार मुझे ढूंढे ना मिलेगा,
नहीं, वैसे ये आप अपने पल्ले से बकवास कर रहे हैं। आपके माशाल्लाह लहजे से और आपकी हरकतों से पता चल रहा है कि इस तरह का फिक्रा आपको कोई भी मालिक मकान नहीं कह सकता। बिल्कुल। जब भी ये हमारे पास आता है तुम्हारी शिकायत लेके, लाजमन वो शिकायत ऐसी निकलती है कि बंदा तेनू रल के कुटे। हाय हाय हाय। अब वैसे मसला क्या हुआ है जी? ओ सर जी, मैंने इसको अपना घर किराए पे दिया है, इसने आगे किराए पे दे के मेरा घर कबाड़ खाना बना दिया है। नहीं, वैसे ये शिकायत तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। ये जिसको तुमने मकान किराए पे दिया हुआ है, ये तो मकान के अंदर बैठा हो तो चूहा भी अंदर देख के कहेगा कि यार मकान तो सारा भरे है, मैं किथे जावां। ओ नहीं जी, घर के अंदर नहीं इसने किसी को घुसाया हुआ। जो मेरे घर की दीवार है ना, उसके बाहर इसने नान टिक्की और समोसे वालों की रेडी लगवा दी है और उससे ये पैसे ले रहा है। तो यार तुम्हारे लिए तो वैसे फायदे की बात है, जब किराया लेने जाते हो साथ 4 को समोसे भी फड़े तो निकल गए। और जी इसे तो शुक्र करना चाहिए, इसके मकान की मैं कमर्शियल वैल्यू बढ़ा दी है। एक मिनट जरा, अपना की ना थोड़ा थड़ा साहब? जमील जी। हा, नाम भी आपने शक्ल के खिलाफ रखा हुआ है। क्या हुआ? आपका नाम होना चाहिए मलक ताद या चौरी दलदल। मिस्टर टेरी। आप ये मुझे जरा बताएं कि वो बाहर स्टॉल लगवाने से पहले आपने मालिक मकान से पूछा था? जी किसी गरीब आदमी का रोजगार लग गया, इससे मैंने क्या पूछना था? ओ, तू गरीब आदमी का स्टॉल लगवा रहा है, तू कौन सा अंबानी साहब है? तुमने किराए पे मकान लिया हुआ और तुम खुद ही फैसले कर रहे हो उसके। सर जी, ये अंबानी नहीं, ये तरलानी है। इसने उस बंदे का तरला करके उधर स्टॉल लगवाया है। 10,000 रुपया महीने का किराया, और तो और 6 समोसे रोज लेता है उससे। झूठ, सफेद झूठ और सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने कोई उससे 6 समोसे नहीं मांगे, सिर्फ 3 समोसे लेता हूँ, वो भी शाम के वक्त। हाँ, जिस दिन उसके नहीं बिकते उस दिन वो 6 दे देता है। तो जिस दिन खराब हो जाए उस दिन तो फिर दर्जन दे देता होगा। याद रखना जीजी साहब, समोसा कभी खराब नहीं होता। आपके मुंह में बाहर तो खराब हो जाता है, जब आपके मुंह में चला जाए फिर उसने क्या खराब होना। बाहर पड़ा हुआ भी नहीं खराब होता, क्योंकि उसके ऊपर चने डल जाते हैं, लाल चटनी डल जाती है, वो उसके ऐब छुप जाते हैं। वो छोटे बजट की फिल्म के कैरेक्टर एक्टर, और तुमने उसके पूछे बगैर उसकी दीवार के साथ क्यों समोसों का स्टॉल लगवाया है? और गौरी साहब जाके मेरा घर देखें, घर की दीवार के साथ घी के निशान, उसमें से ईंटें निकाल निकाल के चीजें रखने के लिए दीवार में इसने खुड्डे बनाए हुए हैं। मेरा मकान रो रहा है जनाब। हाय, रो रहा है तो उसको जाके फीडर पिलाओ। इधर किधर आ गए हो? देखो जरा, उसका 5 मरले का मकान है, उसको भी अपना छोटा मुंडा समझ रहा है। कह रहा है मकान को फीडर दो जा। यार मेरी बात सुनो, ये तुमने सरासर ज्यादती की है मोटे। तुम्हें किसी भी तरह यह हक हासिल नहीं कि तुम मकान किराए पे लो और आगे किराएदार को दे दो। बिल्कुल। बेशक तुमने मकान की दीवार के साथ ही स्टॉल लगवाया है, क्यों लगवाया है? तुम मालिक मकान की इजाजत के बगैर ऐसे मकान को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह आपका भला करे फरीद साहब, 25,000 रुपए में ये मेरा किराएदार है, 10,000 रुपया ये उस स्टॉल वाले से ले लेता है, 5,000 के ये उसके समोसे खा जाता है। इसको तो मकान पड़ा सिर्फ 10,000 रुपए में। राहुल ने आहिस्ता आहिस्ता समोसे बता के मकान तेरा मुफ्त कर लेना है। और भाई जी, ये अब भी मुफ्ती रह रहा है। घर का जो बिजली का बिल आता है वो भी वो समोसे वाले से दिलवा रहा है। ओ भाई, मेरा उसका मामला है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? हाय, मेरा घर है और मैं बोल ही नहीं सकता। यार वैसे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम उसके घर को मिसयूज कर रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। सर जी, मैं कहता हूँ कि एक गरीब आदमी का रोजगार लग गया है। उसका रोजगार लग गया और तुम्हारे समोसे लग गए। एक हमारे मोहल्ले में, मैं अपना मोहल्ला नहीं कहूंगा, इसके मोहल्ले में एक आदमी गंदे मंदे समोसे बेचता था, गंदे तेल में, मुजरे सेहत। अच्छा। अब मैंने बच्चों की और मोहल्लेदारों की सेहत का ख्याल रखते हुए
साफ तेल में समोसे लगवाए हैं। बताएं इसमें मेरा क्या गुनाह है? वाह 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 वाह, इस नेकी के एवज तुम्हारी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और भाई तुम्हें बच्चों का, मोहल्लेदारों का इतना एहसास था, मुझे बताते, मैं खुद करता उस स्टॉल वाले से बात और उसका किराया मैं लेता। तुम किराया क्यों लेते? दीवार हमारी, खिड़की हमारी बंद हुई है, ताजा हवा हमारे लिए बंद हो गई है, आप किराया किस बात का लें? ऐसा पक्का फ्रॉडिया है ना ये। मैंने उस स्टॉल वाले से पूछा, भाई तुमने यहाँ पे क्यों लगाया स्टॉल? स्टॉल वाला कहता चलो दौड़, मैंने मालिक मकान से पूछ के लगाया है। और ये खुद मालिक मकान बना हुआ है उसकी नजर में। और जब मैं किराया देता हूँ तुम्हें, तो मैं ही मालिक मकान हूं ना। तुम तो आते हो 6-6 माह के बाद। यही असल वजह होती है इस तरह के मामलात में। मालिक मकान किराए पर मकान देकर चला जाता है और ज्यादातर लोग तो उसके अकाउंट में पैसे जमा करवा देते हैं या फिर किसी बंदे के हाथ किराया भिजवा देते हैं। मालिक मकान इस तरफ आता ही नहीं है। 4-6 महीने बाद आते हैं तो इस तरफ नया ही गुल खिला हुआ होता है। अब जिस तरह से ये कह रहा है, इसको पता था कि ये मालिक मकान यहाँ पे 4-4, 6-6 महीने नहीं आता, इसने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे स्टॉल लगवा दिया। जी सर, इसी तरह मकानों पे कब्जे होते हैं। ये स्टॉल वाला यहाँ पे 1 और साल निकाल गया, इसने कहीं से जाली कागज बनवा लेने हैं, तो फिर इसने कहते फिरना कि ये मकान मेरा है। बिल्कुल ठीक कहा। और मैंने क्या करना आपके मकान को? ये 2-4 माह की बात है, मेरी कमेटी निकलनी है, मैंने फेज 7 में अपना मकान ले लेना है। फेज 7 में मकान? वो कमेटी 7 करोड़ की डाली हुई है। 7 करोड़ की नहीं जनाब, 7,000 की। 10 नामे हैं, 70,000 रुपया इसे मिलना है और चला है 70,000 में फेज 7 में मकान ढूंढने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ तो बीवी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ मैं तेनू तलाक दे देनी है। डिफेंस के तुम ख्वाब देख रहे हो, वो पहाड़ के पीछे अकेला मकान होता है तुम्हारे जैसे बंदे का। और जब कभी भी वो घर से बाहर निकले ना तो दूर से लोग दूरबीन से देख के कह रहे होते हैं ओ निकले आज, निकले आज। आप लोग तो ऐसी ही बातें बना रहे हैं। पिछली कमेटी में मेरे साथ फ्रॉड ना होता तो मैं अब तक फेज 7 में शिफ्ट हो गया होता। ओ भाई फजूल बहस क्यों कर रहे हो? हमने कब तुमसे पूछा कि तुम अमीर हो या गरीब हो? और मालिक के मकान से पूछे बगैर तुम मकान का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हो, किराए के घर पे तुम रहते हो। और जनाब मेरा घर खाली करवा दें इससे। वो समोसे वाले ने इसके 4 समोसे बढ़ा के तो मकान अपने नाम करवा लेना। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। अभी कल की बात है, ये 2024 शुरू हुआ था, अब खत्म भी हो गया, अब 2025 शुरू हो रहा है। शुरू हो रहा है भाई जी, तकरीबन महीना गुजर चुका है। मेरा ख्याल है यहाँ आपका कैलेंडर स्लो है या आपकी बैटरी लो है। ओ बबलू, क्या तुम्हारा कैलेंडर स्लो है? यार देखो अब वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है कि साल गुजरते हुए पता भी नहीं चलता। ये मुझे याद पड़ता है कि ऐसे महसूस होता है कि अभी कल की बात है, ये 2024 शुरू हुआ था, अब खत्म भी हो गया, अब 2025 शुरू हो रहा है। बिल्कुल शुरू हो रहा है भाई जी, तकरीबन महीना गुजर चुका है। मेरा ख्याल है यहाँ आपका कैलेंडर स्लो है या आपकी बैटरी लो है। ओ बबलू, क्या तुम्हारा कैलेंडर स्लो है? जुल्फी जी आई एम सॉरी, तुम्हारा बड़ा छोटी मोटरसाइकिल की किक जैसा मुंह है। अब भाई मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अभी शुरू ही हुआ है ना। हाँ जी बिल्कुल। पहला महीना भी पूरा तो नहीं ना हो गया। हाँ, पहला महीना। तुमने तो मेरा कैलेंडर ही पकड़ लिया, हद हो गई है। मेरा ख्याल है यार जो मैं मौजू छेड़ना चाह रहा था वो रहने देते हैं, जुल्फी में जुगता करिए। अजीजी, तुम मौजू की तरफ आओ, जुगतों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। नहीं नहीं सर, आप बताएं क्या बात थी? चंद लोग हैं जो मुझे समझते हैं। जी ये जिया को पता चलता है कि ये एक दानिशवर इंसान बैठा हुआ है, या गौरी चूंकि खुद माशाल्लाह दानिशवर है, इसलिए से मालूम है कि अय्यी को बहुत अच्छा मौजू लेके आता है, सुनना चाहिए। 4-5 ही बंदे समझते हैं आपको, बकाया काम पे जाते हैं सारे। असल में मैं कहना ये चाह रहा था जी सर।
कि लोग चांद पे चले गए हैं जी हाँ जी और हमें अभी तक जमीन पे रहना भी नहीं आ रहा। हाय हम अपनी जमीन पे रहन सहन की जो कदरें हैं वो भी खोते जा रहे हैं। बड़ा ही मुझे फील हुआ एक बात सुन के, एक दोस्त ने बताया जी जी कि उसकी बेटी छोटी सी, उसकी बच्ची स्कूल जाती है अच्छा और उसने ऐनक लगाई हुई है, उसकी नज़र कमज़ोर है। अब काफ़ी अक्सर बच्चों की नज़रें होती है, कमज़ोर होती है। जी हाँ, पढ़ते हैं बच्चे। तो उसने वो लगाई हुई थी ऐनक, अच्छा तो वो कहीं घर आकर रोना शुरू हो गई। कहती है मैंने नहीं कल से स्कूल जाना, स्कूल बड़ा गंदा है। अच्छा। तो उसके वालिद ने पूछा कि बेटे क्या हुआ है? हाँ जी हाँ जी तो वो रोते हुए कहती है मुझे क्लास वाले स्कूल के बच्चे जो हैं, मेरी क्लास वाले बच्चे, वो मुझे छेड़ते हैं, मुझे चश्माटू कहते हैं। ये हमने पहले भी एक दफा ये बात की थी हाँ अपने जी सर, प्रोग्राम में कि बच्चे जो है ना जी, वो एक दूसरे को जो छेड़ना शुरू हो जाते हैं जी जी किसी माजूरी कमजोरी की बिना पे, वजह से हाँ जी वो नहीं होना चाहिए। वो होता बच्चों में तभी है जब बड़े भी शुरू हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही सर बड़ा कोई इस तरह का लफ्ज बोलता है तो छोटे भी उसे अपना लेते हैं ना। हाँ जी तो अभी तक हम ये चीजें नहीं छोड़ रहे। मतलब को पोलियो ज़्यादा बच्चा या कोई बंदा हो, कोई बेचारा किसी की टांग खराब, जी हम अभी तक उसे लंगड़ाई कह रहे हैं। हाँ हाँ जी जी जबकि आप देखें पूरी दुनिया के अंदर माँ सिवाय मेरा ख्याल है हमारे मुल्क के, जी 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 जितना को मैं सैर कर चुका हूँ जिंदगी में, जी जी मुझे हर जगह पे ऐसे फील हुआ है, खास तौर पे जब पार्किंग में जाते हैं या हाँ किसी जी। क्यू में जाते हैं जी जी या बाथरूम में इवन, तो महसूस होता है कि यार कोई डिसेबल जो बंदा है उसकी कितनी इज्जत है यहाँ पे, हाँ जी उसको कितनी इज्जत दी जाती है, बिल्कुल उसका कितना ख्याल किया जाता है। उसका तमस्खर उड़ाने की बजाय या उसको छेड़छाड़ उसके साथ करने की बजाय पार्किंग में जुर्रत नहीं है किसी की हाँ कि वो डिसेबल पार्किंग के अंदर अपनी गाड़ी गाड़ी लगा खड़ी सके। करे। बिल्कुल सही कहा, वो कोई डिसेबल ही उधर आगे लगाए। सही। इतनी सख्त वहां पे मेरा ख्याल है कानून में सख्ती है जी जी कि जरूरत ही नहीं होती किसी की, खाली पड़े होते हैं, नहीं उधर लगती गाड़ी किसी और की। वाह फिर क्यू में आप चले जाएं, वहां भी डिसेबल को इज्जत दी जाती है, जी फौरी तौर पे उसको आगे बुला लेते हैं। हाँ जी या आप बाथरूम में जाएं, बाहर ये जो पब्लिक टॉयलेट्स होती हैं, जी 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 वहां पे हर जगह पे 7 डिसेबल के लिए टॉयलेट होती है। वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी गई होती हैं ताकि जरा सी भी तकलीफ ना हो किसी को। हाँ जी यहाँ पे हम अभी तक लंगड़ा कहने से नहीं बाज आ रहे हैं। मतलब बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। जरा सा अगर किसी ने वो आला लगाया हुआ है कान में, जी वो ऊंचा सुनाई देता है किसी को, हम उसको बोला कहना शुरू हो कह जाते रहा हैं। हाँ जी इसी तरह अगर हम किसी को तोतला है, को किसी की जुबान तोतली हाँ। है, उसे लाजमन हम थथा जरूर कहते हैं, बिल्कुल सर या उसको कोई ना कोई उसकी छेड़ जरूर डाली होती है। हम बाज ही नहीं आ रहे। हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि हम जमीन के ऊपर जो हर इंसान अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ हाँ है जी जी उसकी इज्जत को बराबर समझें, बिल्कुल सही सबकी इज्जत करें, सबको बराबर समझें। बिल्कुल हमारे यहाँ हमारे मुआशरे के अंदर खास तौर पे चूंकि फाइनेंशियली भी तकसीम है, ए अमीर है, ए गरीब है, ए बेचारा उद्दू गरीब है, हाँ जी और शक्ल वजह के हिसाब से भी हमने तकसीम किया हुआ है एक दूसरे को। बिल्कुल सही बाहर इस तरह का नहीं है, इस तरह का नहीं है बाहर। अब लोग इन चीज़ों से मुबर्रा हो चुके हैं। बिल्कुल सही सर अब लोग जो हैं वो, जैसे मैंने बात शुरू की है, लोग अब चांद पे जा रहे हैं, जी हम जमीन पे ही फंसे हुए हैं, जमीनी मसाइल में ही फंसे हुए हैं। हाय सही। माशाल्लाह आपने बड़ा सफर किया जीजी दुनिया का। अंग्रेज भी होटल ते रोटी खाने प्लेट वापस करके कहंदा गरेबी ले आई। तुम ये बात करते हुए गोगे की तरफ क्यों देख? यानी तुम्हारा सालन खत्म हो तो तुम नहीं कहते गरेबी लाओ, कहते हो ना, तो गोगे को सिर्फ क्यों देख रहे? हालांकि मैं कभी गरीबी लेता ही नहीं, मैं तो फुल प्लेट मंगाता हूँ। गुड। 3-4 फुल प्लेटें खा के फिर कहता हूँ उन्हें दियां 15-20 गरेबियां दे दियो। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਪਲੇਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਪਲੇਟ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਇਆ। यार कितना मैं सीरियस मौजू लेके चला था, ये जुल्फी नहीं बात आता। वो सीरियस मौजू की तरफ दोबारा आ रहा हूँ कि जीजी हैं लोग, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं लोग। जैसे मैंने आम जिंदगी में किसी को ऐसे जुगत नहीं की जिसमें कोई कमी हो, इस तरह मुझे यकीन है आपने भी नहीं की होगी। नहीं, मेरा मतलब है मैं और किसी को नहीं कहता, रोज करते हैं, रोज सारे करते हैं।
नहीं, मैं ज्यादा जो मेजॉरिटी अच्छे लोग भी मौजूद हैं, हाँ जी हाँ जी हम ही नहीं और भी बड़े बड़े अच्छे इज्जत अच्छे हैं करने जी। वाले बिल्कुल। हैं। मगर ये है कि आम तौर पे रवैया हमारा जो है ना वो अभी तक अच्छा नहीं हो रहा। नहीं हो सर हम तो अभी तक यहीं पर फंसे हुए हैं कि रिश्ता देखने के लिए जाए तो लड़के या लड़की का किरदार देखने की बजाय शक्ल और सूरत को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। हाँ हाँ, रिश्ता देखते ही जब वापस बाहर निकल के गाड़ी में बैठते हैं ना हाँ जी, जी हाँ जी तो लाजमन बैठते ही कोई औरत या कोई बंदा चंगा भला सियाना बियाना हाँ जरूर कह देगा कि बाकी ते ठीक है कुड़ी दा नक चौड़ा सी। हाय तो बंदा पूछे तुसी मुंडा बियाना है कि कुड़ी को खरबूजा सुंघाना है। जी हाँ, अगर खुदा ना खास्ता किसी को आंखों का मसला हो तो उसको अंधा कह देते हैं, भेंगा कह देते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है सर, किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। हाँ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੋਗਾ ਇਹਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨ ਟੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਕੜਿੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰ। यानी एक खूबसूरत मौजू जो है उसको फिर उद कड़कियां च फंसा रहे हैं। हाय और अनपढ़ लोगों, आप अभी तक वहीं फंसे हुए हो। हाय और आप लोगों का तो एक एक नाम है ना, मोहल्ले में मेरे बच्चों ने 50-50 नाम डाले हैं। मैं नहीं फील करता, मैं तो एंजॉय करता हूँ। बच्चा कुछ भी कहे मैं आगे से कहता हूँ हाय आर यू ओके। बहुत अच्छे हम किसी को नहीं ठीक कर सकते, जी। तो अपने अंदर तो कॉन्फिडेंस पैदा करें, वाह अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की है ईमान से हाँ गौरी। जी देखो एक तरफ तो चलो ये भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी कमजोरी पे या माजूरी पे बिल्कुल नहीं आवाज कसनी चाहिए। जी दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि बच्चों में भी ये कॉन्फिडेंस पैदा करें हम। बिल्कुल। कोई कुछ कहता है, कोई चश्माटू या कोई ऐसा नाम डालता है, हाँ उसको एंजॉय करें। ट्राई करें ये कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सही कोई ऐसा मसला नहीं है। सारी जिंदगी अल्लाह के फजल से मुझे मोहल्ले में अजीजी साहब, दानिश्वर साहब, ये वो, वाह। मुझे पता है मजाक कर रहे हैं। नहीं यार। नहीं, मुझे पता है ना, जो कह रहा है कि जनाब दानिश्वर साहब, ऐसे कोई कहता है नहीं यार अताउल्ला कासमी या अमजद इस्लाम अमजद साहब ने किसी ने किया, तो मैनू क्यों किसी ने दानिश्वर कहा? ਹਾਏ ਹਾਏ। ये छेड़ते हैं, मुझे पता है, जो कहते हैं ना जनाब दानिश्वर साहब, असल में वो कह रहे होते हैं जनाब बेवकूफ साहब। मैं आगे से पक्के से मुंह के साथ कह देता हूँ थैंक यू। वाह अजीजी दुनिया को तो छोड़ो यार, तुम्हारी भाभी मुझे छेड़ने से बाज नहीं आती। अल्लाह हमेशा कहेगी अब तो पोते दोतरों वाले हो गए हो, अब तो बड़े हो जाओ। हाय और अपने पोते को कहेगी जाओ दादा भाई को जगाओ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। अजीजी नहीं बात आते लोग। ये मुजफ्फर अपने ससुराल गया है, अच्छा तो इसके बड़े साले ने बड़े प्यार से इसको कहा है आओ जी पहलवान जी, तो ये लड़ पड़ा उससे। ये तो गल ते लड़न वाली सी ना यार, हद हो गई है तेरे वाली। मतलब ओनू पहलवान कह रहा है जेड़ा बेचारा दूरों छिली गिरी लगन डे है। यार मौजू का सत्यानाश जरूर करना होता है। हाय ये बात इसलिए मेरे जहन में आई है कि बाहर ना जी, मैं एक सड़क पे फिर रहा था चाइना में। अच्छा वो सड़क के ऊपर ना ऐसे छोटी छोटी लाइनें सी लगी हुई, हाँ हाँ कह लो जैसे छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर कह लो। अच्छा ऊंचे नहीं थे मगर था इतना इतना ना जी, उधर पूरा सड़क के ऊपर तोड़ लगा हुआ। मैंने कहा यार इसकी नहीं समझ आ रही ये क्या है। क्या है हाँ उन्होंने बताया जी कि ये नाबीनों के चलने के लिए, नाबीन ने इसको महसूस करते हुए रास्ता अपना इख्तियार करते हैं। सही मैं बड़ा हैरान हुआ कि देखो हाँ जी हम अभी तक मोटरसाइकिल का या पैदल चलने वालों का रास्ता नहीं बना सके हाँ अपने मुल्क में, तो इधर देखो नाबीनों को भी रास्ते में सहूलत दी हुई है, हुई है। पैदल चलने के लिए सहूलत दी हुई है। बहुत अजीजी सिर्फ चाइना में ही नहीं, पूरी दुनिया में जी। पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज के लिए ऐसी सहूलतें दी भी जा रही हैं और उन पर अमल दरामद का सख्ती से ख्याल भी रखा जा रहा है। बहुत अब तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस है लोगों में कि जो इस तरह की कोई माजूरी रखते हैं, हाँ जी वो अल्लाह ताला का एक इम्तिहान है। तो बिल्कुल सबको बाकियों को चाहिए कि उस इम्तिहान में बड़े अच्छे तरीके से गुजरने के लिए उनका साथ दें, साथ दें बिल्कुल उनके साथ मोहब्बत करें, ताकि वो उस इम्तिहान में से बड़े आसानी से गुजर जाएं। हाँ जी भाई बजाय इसके कि आप छेड़छाड़ के उसको उसकी दिल आजारी करें, हाँ आप उसको प्यार करें,
बिल्कुल बल्कि ज्यादा प्यार करें ताकि उसको अपनी माजूरी का एहसास भी हो। एहसास ना हो। जी बिल्कुल ठीक कहा अजीजी। अफराद बाहम माजूरी को मेन स्ट्रीम किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ जी। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।